Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Railway and Bridge Engineering. Let us see Vision Mission of Department. Vision of the Department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the Department: there are three missions of the department, and these are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 4, that is construction and maintenance of bridge, and today's topic is culvert. To study this topic, we will go through learning outcome, and it includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम. मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे ब्रिजेस एंड देयर कंपोनेंट्स. यह यूनिट पढ़ने के बाद आपको रेलवे ब्रिजेस और उसके डिफरेंट पार्ट्स के मेंटेनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू suggest the type of bridge for the given site condition with justification. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप दिए हुए साइट कंडीशन में किस टाइप का ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है इसका सुझाव दे सकते हो. In last session, we studied about types of permanent bridge, that is RCC girder bridge and प्रीस्ट्रेस गर्डर ब्रिज. हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ ब्रिज के बारे में पढ़ा है. ब्रिज की ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं. इस टॉपिक में हम कल्वर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. कल्वर्ट मीन्स अ स्मॉल ब्रिज. लेट अस सी डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ कल्वर्ट. व्हाट इज मीन बाय कल्वर्ट? अ कल्वर्ट इज डिफाइंड as a small bridge constructed over a stream which remains dry for most part of the year. कल्वर्ट एक स्मॉल ब्रिज है जो छोटी नदी और नाले के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं और जिसकी लेंथ 6 मीटर से कम रहती है. नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ कल्वर्ट, एंड दीज आर आर्च कल्वर्ट, box culvert, slab culvert and pipe culvert. See the picture of culvert. इस पिक्चर में आप ब्रिज के नीचे कल्वर्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किया है यह देख रहे हो. Let us see each type of culvert.
फर्स्ट है आर्च कलवर्ट। द कलवर्ट हैविंग इट्स सुपरस्ट्रक्चर consisting of single or number of arches constructed of any suitable masonry. An arch culvert of stone masonry may be adopted for span ranges of 2 meter to 6 meter. जिस कलवर्ट का सुपर स्ट्रक्चर एक और एक से ज़्यादा आर्च देके कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे आर्च कलवर्ट कहते हैं। स्टोन मेजोनरी से बने हुए कलवर्ट जनरली 2 मीटर टू 6 मीटर स्पैन के लिए यूज़ करते हैं। सी द पिक्चर ऑफ आर्च कलवर्ट। इस पिक्चर में ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर आर्च शेप में कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कलवर्ट है बॉक्स कलवर्ट। इन केस ऑफ बॉक्स कलवर्ट rectangular or square boxes are form of masonry. RCC box have their floor and top slabs constructed with abutment and piers. This type of culvert can be used for a single span of 3 meter or for a double span of 6 meter. इस टाइप के कलवर्ट में सुपर स्ट्रक्चर बॉक्स टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका टॉप स्लैब अबिटमेंट और पियर्स के साथ अटैच रहता है। इस टाइप के कलवर्ट 3 मीटर स्पैन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सी द पिक्चर ऑफ बॉक्स कलवर्ट। इस पिक्चर में आप ब्रिज के नीचे बॉक्स टाइप सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कलवर्ट है स्लैब कलवर्ट। अ स्लैब कलवर्ट कंसिस्ट ऑफ stone slab or RCC slab supported on masonry wall. These culverts are constructed up to the span of 3 meter. इस टाइप के कलवर्ट में मेजोनरी वॉल के ऊपर स्टोन स्लैब और RCC स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस टाइप के कलवर्ट 3 मीटर स्पैन के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सी द फिगर ऑफ स्लैब कलवर्ट। इस पिक्चर में मेजोनरी वॉल के ऊपर स्लैब कलवर्ट कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कलवर्ट है पाइप कलवर्ट। फॉर स्मॉल स्ट्रीम क्रॉसिंग द रोड और रेलवे एम्बैंकमेंट्स वन और मोर पाइप्स may be laid to act as the culvert. The diameter of pipe is always more than 300 mm. छोटी नदी क्रॉस करने के लिए रेलवे और रोड के नीचे एक या एक से ज़्यादा पाइप रखते हैं और इस टाइप के कलवर्ट को पाइप कलवर्ट कहते हैं। इस टाइप के कलवर्ट में जो पाइप यूज़ करते हैं उसकी डायमीटर 300 mm से ज़्यादा रहती है। In this way, we studied different types of culvert. See the picture of pipe culvert. आप इस पिक्चर में पाइप कलवर्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किया है यह देख सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ टाइप ऑफ ब्रिज एंड दीज आर नेचर ऑफ रिवर मीन्स नदी का स्वरूप कैसा है, रिवर बेड कंडीशन नदी के पानी की लेवल कितनी है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक टू बी कैरिड ब्रिज के ऊपर से जाने वाले व्हीकल्स कितने हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ से रिलेटेड क्लाइमेट कैसा है, द लेंथ ऑफ ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड ब्रिज की लेंथ मीन्स लंबाई कितनी रखनी है, फिजिकल फीचर्स ऑफ साइट ब्रिज साइट के सराउंडिंग फीचर्स कैसे है। सी द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द रेलवे ब्रिज विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स। यह सब फैक्टर्स कंसिडर करके जो ब्रिज सुटेबल है उसे वहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन दिस वे in today's session we studied about culvert,
types of culvert, and choice of type of bridge. Hope you understood the portion explained here. And in next session, we will study about inspection and maintenance of bridge. Important questions on today's topic are: define culvert, enlist types of culvert, describe pipe culvert with neat sketch, enlist factors affecting choice of type of bridge. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.